Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 40 turn, and from this lecture, I am going to start new chapter, that is special purpose subsidiary book. Chapter number 12 it is in your book. Topics which I am covering in this lecture is meaning of subsidiary book, purchase book, and sales book format. And theory part of this chapter I am explaining you in this book, and some numericals also will be there. Then in the next lecture, I will explain the remaining numericals of the chapter. See beta, as discussed only in the previous chapter, that cash transactions are recorded in cash book, and जो non cash transactions हैं, it is recorded in other special purpose subsidiary book, which are as follows: number 1 purchase book, number 2 sales book, number 3 purchase return book, number 4 sales return book, number 5 bills receivable book, number 6 bills payable book, and number 7 is journal proper. Bills receivable book and bills payable book are not in your syllabus. सी द फर्स्ट वन परचेज बुक, और इसको हम परचेज जर्नल भी बोलते हैं. ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक्स. गुड्स हेयर मीन्स ओनली दोज आई थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग. देखो, सारे क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में. गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मतलब वो है जिससे फर्म डील कर रही है. दीज आर द आर्टिकल्स विच आर परचेज फॉर रीसेल. वो आर्टिकल जिसको हम रीसेल के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ परचेज बुक. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म इज डीलिंग इन क्लोथ purchase cloth, it will not be treated as purchase of goods. It will be recorded in it will be recorded it will be treated as purchase of goods, and it will be recorded in purchase book. But if the same firm purchase furniture, it will be treated as purchase of an asset and will not be recorded in purchase book. Purchase book is also known as invoice book और purchase day book. ठीक है बेटा, परचेज बुक वो बुक है जिसमें हम रीसेल के लिए गुड्स जो आइटम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं. अगर फर्म ने क्लोथ परचेज करा और क्लोथ को रीसेल कर रही है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा. लेकिन वहीं पे अगर फर्म कोई एसेट परचेज करिए तो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ परचेज बुक. इट विल बी द पार्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट. नाउ सी, in purchase book, cash purchase are not recorded in this book, since these will be recorded in the cash book. Purchase of asset, only credit purchase of goods are recorded in this book. Purchase of assets such as machinery, furniture, typewriter, etc. are not recorded in the purchase book. Instead, these are recorded in journal proper if purchase on credit, or in the cash book or purchase of cash. ठीक है. Recording of transaction, the source document on the basis of which the transactions are recorded in the purchase book are invoices or bill received by the firm from the suppliers of the goods. And invoice contain the quantity of the goods, rate, amount, at right discount, etc. ठीक है. Then trade discount, the amount of purchase to be recorded in purchase book is arrived after deducting the trade discount. Trade discount को minus करने के बाद जो amount होती है उसको हम record करते हैं purchase book में. Now see the format of purchase book: date, particular, name of the supplier, account to be credit, invoice number, LF, detail, purchase, input CGST, input SGST और इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट. ये फॉर्मेट है परचेज बुक का. अब इसमें डेट में आपका डेट ऑफ परचेज आ जाती है. पर्टिकुलर, नेम ऑफ द पर्सन ऑफ द फर्म फ्रॉम होम द गुड्स हैव बीन परचेज, उसका नेम आ जाता है. इनवॉइस नंबर, वो आपका फर्स्ट बिल जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, दैट इज इनवॉइस नंबर. किस लेजर में हम उस लेजर फॉलियो को किस पेज पर हम रिकॉर्ड करें, दैट इज लेजर फॉलियो पेज नंबर. डिटेल्स, दिस कॉलम इज यूज टू राइट द इंडिविजुअल अमाउंट. अलग अलग जितनी बार परचेज हुई है क्रेडिट बेसिस पे वो सब अलग अलग रिकॉर्ड होगा इन दिस परचेज बुक. देन परचेज, नेट अमाउंट ऑफ परचेज आफ्टर CGST, आफ्टर SGST, उसको रिकॉर्ड करेंगे इन परचेज. एंड देन इनपुट सेंट्रल परचेज में बिफोर CGST वाली अमाउंट आएगी. देन आपने अगर विद इन द स्टेट परचेज करा है तो टैक्स को उसमें शो कर देंगे, और अगर आउटसाइड द स्टेट शो करा है तो आपका SGST चार्ज हो जाएगा. CGST एंड SGST विद इन द स्टेट में चार्ज हो जाएगा बेटा, IGST आउटसाइड द स्टेट चार्ज हो जाएगा. Then total amount of each transaction is shown in this column, and the amount of each transaction is posted to the credit of the supplier account in the ledger. Then freight or cartage charges are incurred on purchase of goods after the introduction of GST. It will not be appropriate. तब GST के बाद से बेटा फ्राइट एंड कार्टेज चार्जेस को हम अलग से शो नहीं करते हैं, वो उसी में लेविड हो जाता है, चाहे वो 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, उसके हिसाब से ही आपके जो है 5 रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली चार्ज हो जाता है. और फ्राइट और कार्टेज चार्जेस चार्ज एट द फिक्स रेट ऑफ 18%. Now see difference between purchase book and purchase account. Purchase book is a part of journal, whereas purchase account is the part of ledger. जैसे कैश बुक और कैश अकाउंट था वैसे ही purchase book and purchase account है. There is difference in format of purchase book and purchase account. Purchase book is not divided into debit and credit side, whereas purchase account is divided into debit and credit side. Purchase book में debit and credit side नहीं होता है, लेकिन आपके purchase account में debit and credit side में divided होता है. Purchase book record only credit purchase of goods, whereas credit as well as कैश परचेज ऑफ गुड्स आर पोस्टेड इन परचेज अकाउंट. दोनों ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, और ओनली क्रेडिट परचेज जो है परचेज बुक में रिकॉर्ड होता है.
नंबर 2 बुक है सेल्स बुक और सेल्स जर्नल. All credit sales of goods are recorded in the sale book. सेल बुक में हम सारे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं. कैश सेल विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक. सिमिलरली क्रेडिट सेल ऑफ थिंग्स अदर देन the goods in which the firm deals are not entered in the sales book, they are entered in the journal. Similarly अगर हम कोई क्रेडिट सेल कर रहे हैं थिंग्स का जिसको की फर्म डील कर रही है उसको हम सेल्स बुक में एंटर नहीं करते हैं बल्कि हम उसको कहाँ एंटर करते हैं सेल्स जर्नल में एंटर कर देते हैं. सेल्स बुक इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स डे बुक. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. कैश सेल को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन्स को वी आर रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक. देन सेल्स ऑफ एसेट को अगर हमने सेल करा है तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल बुक बल्कि एसेट्स अकाउंट में पोस्ट होगा. कैश में है तो कैश अकाउंट में हो जाएगा, क्रेडिट में है तो जर्नल प्रॉपर में पोस्ट कर देंगे. देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल इनवॉइस इशूड बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल. एंट्रीज आप तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास प्रूफ होता है. 1 कॉपी हम कस्टमर को देते हैं, अदर कॉपी में नंबर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं इन द सेल्स बुक. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक. डेट, particular, name of the customer, invoice number, LF, details, sale, output CGST, output SGST, output IGST and total amount. ये रिकॉर्ड करते हैं. इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम होते हैं. 10 के 10 कॉलम उसमें होने चाहिए. देन एक्सप्लेनेशन नंबर 1 डेट. द डेट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन दिस बुक. देन पर्टिकुलर में आपका नेम ऑफ द कस्टमर आएगा. दिस कॉलम ऑल्सो कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड, इट्स क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, गुड्स ग्रॉस अमाउंट, रेट डिस्काउंट एक्सेट्रा सब आते हैं. नंबर 3 इज इनवॉइस नंबर. Number 4 is ledger folio. Then number 5 is detail. This column is used to write the individual items sold less trade discount. इसमें trade discount को minus करके जो individual item sold होता है उसको हम record करते हैं. It is also used to add the amount of output CGST, output SGST and output IGST. Then sale, net amount of sales less trade discount is written in this column. Then output CGST. A separate column is provided in the sale book to record output CGST. This tax is collected by the seller from buyer ऑन इंट्रास्टेट गुड्स. अगर आपका इंट्रास्टेट गुड्स है मतलब विद इन द स्टेट डील कर रहे हैं तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST चार्ज होगा. और जब आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं तो IGST कॉलम चार्ज हो जाएगा. सेपरेट कॉलम इज मेंटेन टू रिकॉर्ड आउटपुट IGST. दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन द इंटर स्टेट सेल. जब इंटर स्टेट सेल होती है तो हम सेलर से कलेक्ट करते हैं IGST और इंट्रा स्टेट सेल में CGST एंड SGST कलेक्ट होता है. Now see total amount. Total amount of each transaction is shown in this column and the amount of each transaction is posted to the debit side of customer's account in the ledger. CGST plus SGST will be recorded on sale within the same date. Same day state में within the same state में CGST and SGST को record करेंगे and outside the state में आपका IGST record हो जाएगा. ठीक है बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अभी मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताऊंगी एंड इसके बाद आपका जो है एक ट्रायल बैलेंस का चैप्टर होगा. देन योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड फॉर T2 एग्ज़ाम. T2 एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. आप ये स्टार्ट कर दीजिए कॉपी में वर्क कंप्लीट करना बेटा. एंड वन थिंग, आई नीड योर कॉपी ऑन 18 एंड 19. अपना वर्क कंप्लीट करिए. 18 19 में कॉपीज़ को आप स्कूल में सबमिट करेंगे और जिसकी कॉपी भी सबमिट नहीं होती दे विल नॉट गेट मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम. थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे.